All of you can see the screen? Yes? Yes, I'll just write everything. Okay, I'll write, don't worry. So the heading is, write the heading. Calorimetry. ठीक है, CALORIMETRY, कैलोरीमेट्री. ओके, राइट, सबको दिख रहा है कैलोरीमेट्री? यस. Okay, now just think about this. Suppose I'm having two objects. Suppose I'm having two objects. This is object A. This is object A at T1 temperature. ठीक है? Yes or no? Right? And we have object B. Object B at T2 temperature. ठीक है? We have object A at T1 temperature and mass M1, and object B at T2 temperature and mass, wait, yeah, M2, अलग-अलग mass है. Now just think about this, and I have told you that T1 is greater than T2. T1 is greater than T2. Then tell me, if T1 and T2, the object first, object second, are put close together, मतलब सटा के रख दिया गया, right? Then tell me what will happen. What will happen? Tell me. What do you think? What will happen? क्या होगा? क्या लगता है? Nothing will happen. Okay, I'll give you another example. Suppose you have water at 30 degree centigrade. ठीक है? Water at 30 degree centigrade. And then you have another water. Okay, you have another water at 50 degree centigrade. अभी सेम सवाल, ठीक है, राइट? और इसको कनेक्ट कर दिया गया, मान लो कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, कनेक्ट कर दिया गया या सटा दिया गया या मिक्स कर दिया गया. क्या होगा? टेल मी, क्या होगा? यस देविका, एनर्जी ट्रांसफर विल टेक प्लेस. यस और नो? टेल मी, एनर्जी ट्रांसफर विल टेक प्लेस. यस और नो? राइट, है ना? एनर्जी ट्रांसफर विल टेक प्लेस. ठीक है? Now just think about this. Which of the two? इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, right? Wait, something is happening with my laptop. ठीक है? Just okay. So A and B. Tell me, A और B में से, ठीक है, A और B में से heat gain कौन करेगा, heat loss कौन करेगा? Tell me, A will gain or lose? Gain or lose? Tell me, A will gain or lose? A will gain. Yes, very good. Because temperature कम है ना, right? So heat will transfer from higher temperature to lower temperature. So A will gain. Very good. And B will lose. Yes or no? Right? So A का temperature क्या हो जाएगा? Increase. A का temperature increase करेगा, right? और B का temperature decrease करेगा. Yes or no? Tell me, yes or no? Okay, so can I say that heat lost by A is equal to heat gained by B? Right? Considering atmosphere में कुछ नहीं गया, ठीक है? Can I say this? Heat lost by A is equal to heat gained by B, considering atmosphere को ignore कर रहे हैं, ठीक है?
Can I say this? Why not? Heat can neither be created nor be destroyed, है ना? It can only transfer from one point to another point. Yes, very good. So मैं ये नहीं कह सकता. I can say this. Heat gained by A, है ना? Very good. Heat gained by A should be equal to heat lost by B, right? ये सही है ना? Got it? Yes or no? ठीक है? This is called as इक्वेशन ऑफ हीट ट्रांसफर. ठीक है? इक्वेशन ऑफ हीट ट्रांसफर. और अभी हमने देखा हीट, राइट, दो तरह का होता है. फर्स्ट इज योर लेटेंट हीट. लेटेंट हीट, यस और नो, राइट? फेज चेंज के लिए, फेज चेंज, फेज चेंज. ठीक है? इसका फॉर्मूला जो होता है लेटेंट हीट का, राइट? लेटेंट हीट का फॉर्मूला m into L, m into L, right? Where m is mass, mass of object, object. ठीक है? and L is latent heat, जो कि दिया रहेगा, कांस्टेंट होगा, राइट? है ना? राइट? अब जैसे देखो, मान लो एग्जांपल, राइट? सपोज ओके, सपोज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, राइट? क्योंकि मेल्ट कर रहा है ना, तो उसको फ्यूजन बोलते हैं. सो L of fusion of ice, of ice. ठीक है? तुमको मैंने दिया हुआ, कितना दिया है? 334 जूल पर ग्राम. ठीक है? 334 जूल पर ग्राम मैंने दे दिया है. यस और नो? समझ में आ रहा है? I have given you this. Latent heat of fusion of ice is equal to 334 joule per gram, right? Latent, L-A-T-E-N-T. Okay. स्पेलिंग मैंने गलती किया ना, latent, sorry, my bad, right? So find the amount of heat, yes, you have to write it, heat to convert 500 gram of ice into water, बताओ कितना होगा? टेल मी, बताओ. What is the meaning of 334 joule per gram? What is the meaning of that? Means 1 ग्राम आइस को, 1 ग्राम आइस को, राइट, वाटर में कन्वर्ट करने में कितना एनर्जी लग रहा है? 334, है ना? देन 500 ग्राम्स आइस को कितना लगेगा? बताओ, टेल मी. 334 into 500. Yes or no? Tell me. Yes or no? है ना? जूल. ठीक है? गॉट इट? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? लेटेंट हीट निकालना समझ में आया, राइट? सो ये 334 जूल पर ग्राम कांस्टेंट होता है. ये वाटर के लिए फिक्स है. समझ में आया? ये वाटर के लिए फिक्स है, राइट? सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 334 ग्राम, सॉरी 334 जूल पर ग्राम, फिक्स होता है. ठीक है? गॉट इट? नाउ अगर मैं तुमसे ऐसा पूछूं, क्वेश्चन 2, राइट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ये क्या होगा? बताओ. व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? टेल मी. This is the amount of heat required to change, बताओ.
आइदर केजी और ग्राम, यूनिट में डिपेंड करता है, ठीक है, बट कुछ भी बोल सकते हो, है ना। सो दिस वैल्यू इज ऑल्सो फिक्स्ड, दिस वैल्यू इज ऑल्सो फिक्स्ड विच इज 2260 जूल पर ग्राम, ठीक है, 2260 जूल पर ग्राम। अब बताओ ज्यादा एनर्जी किसमें लग रही है, आइस से वाटर बनने में कि वाटर से वेपर बनने में? टेल मी, क्या लगता है किसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है? बताओ। वाटर से वेपर, यस वेरी गुड, ठीक है। तो ये तो हो गया जब फेज चेंज कर रहे हैं। तुम लोग फिर पूछो कि ठीक है सर ये तो ठीक है जब फेज चेंज कर रहे हैं, बट व्हाट इफ temperature, right, change? If temperature will change, then heat का formula क्या है? Then the formula of heat when temperature changes from T1 to T2 of object having mass m, having mass m, इसका फॉर्मूला देखो, लिख लो, इट इज m mass into s into delta t, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या होता है। सो डेल्टा टी, पहली बात डेल्टा टी क्या है सबको ही समझो। डेल्टा टी इज योर चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी इज योर चेंज इन टेम्परेचर। पता है सबको चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या है? टेल मी, चेंज इन टेम्परेचर मतलब पता है? अगर टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो बताओ चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? टेल मी, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर हियर? दिस इज T1, दिस इज T2, 10 सबको पता है ना। तो तुमने क्या किया, T2 माइनस T1, यस और नो? T2 माइनस T1 ये किया, राइट। दिस इज योर चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम लोग डेल्टा टी बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट। सो चेंज इन टेम्परेचर इज T2 माइनस T1, सबको समझ में आया? यस, राइट, चेंज इन टेम्परेचर इज T2 माइनस T1। ओके, नाउ जैसा हमने लेटेंट हीट का डिफिनेशन दिया, वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट टेम्परेचर चेंज करता है, देन द amount of heat required is called as specific heat, specific heat, ओके, जिसको हम S बोलते हैं। ये क्या होता है? amount of heat required, amount of heat required, ठीक है, to raise the temperature, raise the temperature of 1 gram of object, 1 gram या 1 kg, ठीक है, of object by 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, राइट। अब देखो वही तुम्हें बता रहा हूँ रागिनी, ठीक है, पूरी इट इज डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, राइट, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, T2 minus T1 which is change in temperature, change in temperature, ठीक है, राइट। अब ध्यान दो, तो रात में रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग में मैंने एक लास्ट क्वेश्चन फिर क्लास खत्म। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, specific of water, constant here, wait, something happened, my screen, yeah, what's done, okay, yeah, right, S is a constant, just remember S is a constant, ठीक है। So specific heat of water which is a constant, exact constant, the value of this constant, the value of this constant is, ठीक है, जैसे latent heat constant है ना, वैसे ही specific heat भी constant है, ठीक है, इसका वैल्यू फिक्स होता है which is 4
0.2 जूल पर ग्राम फिक्स है। मींस 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 4.2 जूल एनर्जी चाहिए। समझ में आया? यस और नो? ये समझ में आया सबको? टेल मी, ये समझ में आया? ठीक है, 4.2 जूल। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन फाइंड amount of heat required to raise the temperature of 100 gram of water from 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन के बाद छुट्टी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन के बाद छुट्टी। स्क्रॉल नीचे ही है पूर्वी, शायद तुम्हारा स्टक कर गया होगा, राइट? एक बार चेक करो। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज गिवन, राइट? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर is given, S is equal to 4.2 joule per gram। ठीक है, ये given है, right? This is given। I don't know why my Zoom is lagging a lot, right? But this is given। So देखो फॉर्मूला, हीट अब 20 से 40 हो रहा है, 20 से 40 हो रहा है, तो हीट गेन कर रहा है कि हीट लॉस कर रहा है? बताओ, टेम्परेचर इज चेंजिंग फ्रॉम 20 to 40, हीट गेन हो रहा है कि हीट लॉस हो रहा है? बताओ, गेन और लॉस? गेन, वेरी गुड। सो हीट गेन इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है हमें, ms डेल्टा टी, है ना? राइट। सो m कितना है? 100 ग्राम्स इनटू s कितना है? 4.2, यहाँ ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है बाय द वे, इनटू डेल्टा टी विच इज T2 माइनस T1, 40 माइनस 20। सबको समझ में आ रहा है ये चीज? सबको समझ में आया कि नहीं? ये चीज इजी लग रहा है? टेल मी, इजी लग रहा है कि नहीं? पता चलेगा ना कि कितना हीट एक्चुअली एक्सचेंज किया। तो कितना हो गया बताओ? 100 इंटू 4.2, 420 इंटू 40 माइनस 20 विच इज 20, कितना हो गया? 8400 जूल। यस और नो? 8400 जूल, राइट? सबको समझ में आ गया? लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, सब कुछ? यस, गॉट इट? हीट हमारा खत्म हो गया। अब तुम लोग को पता चलेगा कि हाँ, हीट निकाल भी सकते हैं। ठीक है, राइट? ओके, चलो। सो क्लास खत्म करते हैं। बाय, थैंक यू एवरीवन, होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन।